السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی نے ملک بھر میں بڑھتی ہوئی بدعنوانی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نلگنڈا میں اپنے کیمپ آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات میں بے تحاشا خرچ پر کوئی پابندی نہ ہونا کرپشن میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن سے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مفت اسکیموں کے نام پر اربوں روپے خرچ کیے جا رہے اور اس پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کی معیشت شدید بحران میں پھنس سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سیاست میں زبان کا استعمال بھی نچلے درجے پر پہنچ چکا ہے۔ ہر سیاسی رہنما کو خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام میں سیاستدانوں کے تئیں نفرت اور بے اعتمادی کا رجحان بڑھ رہا، اس لیے سیاسی رہنماؤں کو اپنی زبان کے ذریعے عزت کو قائم رکھنا چاہیے۔ تلنگانہ کے سوریہ پیٹ ضلع مستقر میں جیولری شاپ میں 18 کلو سونے کے زیورات کی چوری کی واردات پیش آئی۔ چوروں نے نصف شب کے بعد دکان کی پچھلی دیوار میں نقب زنی کر کے اندر داخل ہو کر دوسری سمت کا شٹر توڑتے ہوئے تقریباً 18 کلو گرام سونے کے زیورات کی چوری کر لی۔ جب دکان کھولی گئی تب دکان مالک چوری کا پتہ لگا اور فوری طور پر پولیس کو مطلع کیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی اور کلوز ٹیم کے علاوہ ڈاگ اسکواڈ کی مدد سے چوروں کی تلاش شروع کر دی۔ اس واردات سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس تمام زاویوں سے جانچ کر رہی۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں شدید سے انتہائی شدید بارش ہونے کا امکان ہے، یہ بات حیدرآباد موسمیات مرکز نے بتائی ہے۔ مرکز نے کہا ہے کہ ریاست کے تمام اضلاع میں کہیں کہیں شدید بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 2 دنوں سے ریاست کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش ہو رہی۔ عوامی ضروریات کے مطابق نئی بسوں کی خریداری۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے ان باتوں کا اظہار کیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے اعلان کیا ہے کہ حکومت حیدرآباد کے راجندر نگر کے آرام گڑھ علاقے میں ایک نیا جدید طرز کا بس اسٹینڈ قائم کرنے پر غور کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بس اسٹینڈ فورٹ سٹی کو محبوب نگر، نلگنڈا اور وقار آباد جیسے اضلاع سے جوڑنے کے مقصد سے تعمیر کیا جا رہا تاکہ ان علاقوں کے عوام کو بہتر پبلک ٹرانسپورٹ سہولیات میسر ہوں۔ وزیر پونم پربھاکر نے بتایا کہ MGBS اور JBS جیسے بڑے بس اسٹینڈز کے طرز پر یہ نیا بس اسٹینڈ تعمیر کرنے کے لیے تلنگانہ RTC منصوبہ بند کر رہی ہے۔ ہینڈی کیپ ہیلپنگ ویلفیئر سوسائٹی عادل آباد کے بانی اور صدر محمد عمران نے کہا ہے کہ عادل آباد ضلع کے بے روزگار اور معذور افراد کو جاب میلے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے ہینڈی کیپ ہیلپنگ ویلفیئر سوسائٹی دفتر میں سوسائٹی کے ذمہ داران کے ہمراہ ایک ویڈیو پیام جاری کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نائب صدر اترم سوگنا کی سرپرستی میں بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے اس مہینے کی 25 تاریخ کو اچنور منڈل مستقر میں ایک میگا جاب میلے کے انعقاد کیا جا رہا۔ انہوں نے عادل آباد ضلع کے بے روزگار اور معذور افراد کو جاب میلے سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری فیصل احمد، شیخ خلیل، یونس، شیخ محمد کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ రావాలని మనవి చేస్తున్నాం మరియు ఈ జాబ్ మేళాకి విజయవంతం చేయగలరని మనవి। راشٹریہ رکشا سینا پارٹی عادل آباد ضلع زونل صدر شیخ اسلم نے آئندہ ہونے والے ادارے جاتی انتخابات میں پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کا عزم ظاہر کیا۔ ضلع زونل صدر شیخ اسلم نے پارٹی قائدین اور کارکنوں کے ہمراہ عادل آباد ضلع مستقر میں عبداللہ چوک ستنالہ روڈ پارٹی دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ضلع میں شیخ اسلم نے پارٹی کھنڈوا پہناتے ہوئے سب کا استقبال کیا۔ راشٹریہ رکشا سینا پارٹی عادل آباد ضلع زونل صدر شیخ اسلم نے دیپک شنڈے کو SC ٹاؤن صدر اور گڈم نتیش کو جینت منڈل صدر اور MD سبحانی خان کو ضلع نائب صدر مقرر کیا اور ان کے تقرری احکامات حوالے کیے۔ اس موقع پر ستنالہ منڈل صدر گلاب راؤ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔
कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में कम मौजूदगी पर सवाल उठाया। जयराम रमेश ने कहा, कुछ ही देर में सज धज कर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट के बाहर अपने मशहूर अंदाज में मीडिया के सामने मुल्क के नाम अपना पैगाम दे रहे। हर बार की तरह इस बार भी वो घिसी पिटी खोखली बातें दोहरा रहे। रमेश ने आगे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पार्लियामेंट में बहुत कम दिखाई देते हैं। वो साल में सिर्फ एक बार सदर जमहूरियत के खिताब पर शुक्रिया की तजवीज़ के दौरान बोलते हैं, लेकिन इस बार जब पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और सदर ट्रंप से जुड़े मामले पार्लियामेंट में बहस के लिए आए तो उन्हें मुल्क के तई अपनी जवाबदेही जरूर अदा करनी है। मणिपुर मामले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेसी रहनुमा ने कहा, 48 घंटे बाद ये सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM एक और गैर मुल्की दौरे पर निकल पड़े। मणिपुर के अवाम के पास मायूस होने की एक और वजह होगी। कर्नाटक में कुत्तों की दहशत जारी है। गुज़िश्ता 6 महीनों में कुत्तों ने 2,03,000 लोगों को अपना शिकार बनाया और रेबीज से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार कुत्तों के काटने के मामले में इजाफा देखने को मिला है। कर्नाटक महकमे सेहत ने इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के जरिए शेयर किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक इस साल तक जनवरी से 30 जून के दरमियान कुत्तों के काटने से 2,31,091 मामले सामने आए हैं। वहीं रेबीज की वजह से 19 लोगों की जान गई है। वहीं 2024 में कुत्तों के काटने के 3.6 लाख मामले दर्ज किए गए थे और रेबीज से 42 लोगों की मौत हुई थी। गुज़िश्ता साल 6 महीने में कुत्तों के काटने के 1,69,672 मामले सामने आए थे और रेबीज से 18 अमवात हुई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर सुबह उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब एक मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के वक्त रनवे पर बुरी तरह से फिसल गया। तैयारा एयर इंडिया एयरलाइंस का था जो केरला के कोची से मुंबई आया था। तैयारे की जब लैंडिंग हो रही थी तो वो रनवे पर फिसल गया। बताया जाता है कि शदीद बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया और तैयारे के तीनों टायर फट गए। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में मुसाफिरों को किसी तरह की चोट नहीं पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा पेश आया उस वक्त मुंबई में शदीद बारिश हो रही थी। यही वजह है कि लैंडिंग में काफी चैलेंज का सामना करना पड़ा। किसी तरह एयर इंडिया की फ्लाइट AI2744 की लैंडिंग कराई गई और इस दौरान फ्लाइट रनवे पर फिसल गई। इस हादसे में किसी के भी जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। 2006 की मुंबई लोकल ट्रेन धमाका मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने खुसूसी टाडा अदालत के जरिए कसूरवार ठहराए गए सभी 12 मुलजमीन को बेकसूर करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर बरी करने का हुक्म दिया। ये फैसला जस्टिस अनिल कलोर और जस्टिस SG चांडक की बेंच ने सुनाया। इस मामले में निचली अदालत के जरिए 5 मुलजमीन को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। इस केस के 12 मुलजिम में से एक की मौत पहले हो चुकी है। जराये के मुताबिक इस साल जनवरी महीने में इस केस की हतमी समाअत मुकम्मल हो गई थी जिसके बाद फैसला महफूज रख लिया गया था। मुलजमीन ने यरोडा, नासिक, अमरावती और नागपुर जेलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुल से अदालत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस्तग़ाज़ा के जरिए पेश किए गए तकरीबन सभी गवाहों के बयान नाकाबिल एतबार पाए गए हैं। खास तौर से जिन टैक्सी ड्राइवरों या दीगर चश्मदीदों ने मुलजमीन की पहचान की थी उनके बयानों पर अदालत ने सवाल उठाए। अदालत ने तबसरा किया, धमाके के करीब 100 दिन बाद किसी आम शख्स का किसी मुश्तबा को याद रखना फितरी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED पर सख्त तबसरा करते हुए कहा है कि एजेंसी को सियासी लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने ये तबसरा 2 मामलों की समाअत के दौरान किया। एक में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की अहलिया BM पार्वती को राहत मिलने के खिलाफ अपील का था और दूसरा मामला वकीलों को भेजे गए समन से जुड़ा था। पहले मामले में ED ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें कर्नाटक के वज़ीर आला की अहलिया BM पार्वती और कर्नाटक के वजीर शहरी तरक्यात सुरेश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया था। ये केस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए मुबैना तौर पर गैर कानूनी साइट अलॉटमेंट से जुड़ा था। हाई कोर्ट ने 7 मार्च को ट्रायल कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखते हुए कार्रवाई खारिज कर दी थी।
जम्मू कश्मीर के कटरा वाक़ मशहूर वैष्णो देवी यात्रा रास्ते में एक बड़ा हादसा पेश आया। कटरा से माता वैष्णो देवी भवन की तरफ जाने वाले रास्ते में बान गंगा के पास अचानक लैंडस्लाइड हो गया। इस हादसे में 2 मुकामी बाशिंदों समेत 7 अकीदतमंद जख्मी हो गए। इस लैंडस्लाइड वाक़े से घोड़ा पट्टू और पालकी वगैरह की खिदमत को हमवार करने को लेकर एमटेक कंपनी के जरिए कायम प्रीपेड काउंटर भी पूरी तरह से तबाह हो गया। हादसे में जख्मी लोगों को इब्तदाई इलाज के लिए कटरा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। इंतजामिया की तरफ से एम्बुलेंस और मेडिकल टीम फौरन मौके पर भेज दी गई। इस लैंडस्लाइड की जद में आकर मस्जिद अकीदतमंदों के मलबे में दबे होने का खदशा है। इत्तला मिलते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, मुकामी इंतजामिया, पुलिस टीम, सीआरपीएफ, अफात इंतजामिया दस्ता वगैरह राहत व बचाव काम तेजी से लग गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।